Hello guys, welcome to the UPSC Mains Answer Writing Lecture Series. This question was asked by UPSC in GS paper 3 of 2024 and this question was of 10 marks. The statement of the question is, what are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. So in this question, the examiner is asking two things. The first is causes of, for the first is, examiner is asking what are the causes of high food inflation in India. Causes of persistent high food inflation in India. And the second thing that examiner is demanding, that is whether the monetary policy of RBI, whether the monetary policy of RBI is effective or not in controlling the food inflation. Whether the monetary policy of RBI is effective or not in controlling the food inflation. So this is the demand of the question that you have to answer. अब मैं सोर्स की बात भी कर लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया होगा. तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये वाला, ये पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे से. ये डायरेक्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है और जिसने 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा ही कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. और जो क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है ये लिया गया है करंट अफेयर्स से. तो आपके स्टैटिक पोर्शन को आपके करंट अफेयर्स के साथ रिलेट किया गया है. वैसे तो दोनों ही पार्ट करंट अफेयर्स के हैं, लेकिन फिर भी जब इकोनॉमिक सर्वे की बात आती है तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता है जितना भी उसमें डाटा इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके लिए स्टैटिक पोर्शन हो जाता है. अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की. अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर डिस्कस करूँ उससे पहले बता दूं दैट आई एम स्टार्टिंग टू इनिशिएटिव्स. द फर्स्ट इज यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज फॉर 2026. The fees of this series is 9,999 and for the first 100 students there is a discount of 50% and this series is starting from 6 July 2025 onwards. Soon I will upload the schedule of this test series. Second initiative is 1-to-1 mentorship program for UPSC 26-27. In this program I will provide the students personalized guidance along with personalized and flexible study plans. I will handle their queries. I will teach them how to write the answer in mains examination. I will put the link of both these initiatives in the description box. This is my contact number. If you want, you can contact me at this number. And if you are interested in the course, you can join it. Now let's come to our discussion. Now, again the question is, how will you write the introduction? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो. क्वेश्चन कह रहा है what are the causes of persistent high food inflation in India. तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? You will simply write the causes of persistent high food inflation in India are following. उसके बाद आपको क्या है, जो भी कॉजेज हैं, जो भी रीजन्स हैं हाई फूड इन्फ्लेशन के वो मेंशन करने हैं. अब सबसे पहला जो रीजन है हाई फूड इन्फ्लेशन का वो क्या है? दैट इज अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस. द प्रोडक्शन prospects of vegetable and pulses were particularly impacted by unfavorable weather conditions. Now second is crop diseases. Second point is crop diseases. So the increase in tomato prices was caused by region specific diseases like white fly infestation which resulted in its less production and high prices. The third reason is logistic disturbances. या supply chain disruptions. इसको हम supply chain disruption भी कहेंगे. Supply chain disruptions. So there were logistic disruptions in isolated areas due to heavy rains. Now the next point is low production of pulses. So the prices of pulses, particularly tur, increased due to low production over the last 2 years caused by adverse weather conditions. Then next cause was late sowing in case of onion. The spike in onion prices was due to delay in sowing in kharif season and it was further impacted by dry spells during the kharif production एंड ट्रेड रिलेटेड मेजर्स टेकन बाय द अदर कंट्रीज. क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने भी एक्सपोर्ट को क्या बैन कर दिया था अपने वहाँ से, और उनके वहाँ से हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ पे ऑनियन
हमारे मतलब हम ऑनियन इंपोर्ट भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ ने जब उसको अपने कंट्रीज से एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जो उसके प्राइसेस थे वो इम्पैक्ट हुए थे। और इसके बाद जो लास्ट है वो है लोअर प्रोडक्शन ऑफ ग्राम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस रवि सीजन। सो ऑल दीज आर द important causes of persistent high food inflation in India. Then you can write, so agriculture sector was affected by extreme weather events, lower reservoir levels, and damaged crops that adversely affected output and food prices. अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, और दूसरा पार्ट क्या है, हाउ इफेक्टिव इज मॉनेटरी पॉलिसी इन कंट्रोलिंग द फूड इन्फ्लेशन। अब देखो इसमें कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है, सबको आंसर आता होगा, बस मेन चीज़ क्या है कि हाउ टू पुट योर आंसर और हाउ टू पुट योर आंसर इन द परफेक्ट वर्ड्स, और अपने आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाना है, बस यही मैन है। बाकी सबको सब कुछ आता है, जिसने भी प्रीलिम्स पास किया है वो मेंस में भी अच्छे रैंक स्कोर कर सकता है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब देखिए इस आंसर में लिखना क्या है, यू विल सिंपली राइट दैट मॉनेटरी पॉलिसीज effectiveness in controlling the food inflation is limited because food inflation is driven by supply side factors. जो फूड आर्टिकल्स के प्राइसेस हैं वो कब ऊपर जाते हैं, जब उनका प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन क्या है, सप्लाई साइड फैक्टर है। तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो क्या है, एक सप्लाई साइड मेजर है, एक सप्लाई साइड फैक्टर है रेदर देन इंक्रीज डिमांड। यानी कि जब फूड आइटम्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, फूड इन्फ्लेशन होता है, डिमांड तो तब भी सेम रहती है, ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है फूड आर्टिकल्स की। इसी कारण क्या है, उसके जो प्राइसेस हैं वो उनमें स्पाइक होता है, उनमें हमको स्पाइक देखने को मिलता है, जो फूड आर्टिकल्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यू विल सिंपली राइट दैट मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस इन कंट्रोलिंग फूड इन्फ्लेशन इज लिमिटेड एज food inflation is driven by supply side factors rather than increased demand. While monetary policy can help curb overall inflation, its direct impact on inflation or its direct impact on food prices is limited because the prices of the food items are affected by other factors like seasonal fluctuations, then global community prices and supply chain issues. सो इस क्वेश्चन के आंसर में अलग से आपको कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बताओ इसमें क्या कंक्लूजन लिखोगे, गवर्नमेंट को क्या कहोगे कि वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसके जो इंटरेस्ट रेट को आरबीआई तय करता है उसको वो कम कराए, क्या सजेशन दोगे, या प्रोडक्शन बढ़वाए, क्योंकि प्रोडक्शन का क्या है, प्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करती है, वेदर पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। अगर सपोज करो कहीं ड्राई स्पेल हो रहे हैं, कहीं पे पानी नहीं हो रहा, तो पूरा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन वाला से इंट्रोडक्शन में ही कुछ लिखा जाए। और कोशिश करो कि जो भी आपकी इंट्रोडक्शन की लाइन है वो आप अपने क्वेश्चन में से ही पिक कर सको। जिस दिन आपने ऐसा सीख लिया आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो आप कितना अट्रैक्टिव बनाओगे। वैसे भी ये जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज़ का, जीएस जनरल स्टडीज़ का मतलब है इसके लिए आपको किसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है इन पेपर के आंसर के लिए। बस आपको एक डे टू डे जो भी चल रहा है, अगर आप उतने भी इन्फॉर्म हो तब भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो, दैट्स इट। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।